Good morning, dear students. Students, in the previous class, we have started with the central nervous system and we said that it consists of brain and the spinal cord. We had started with the topic of brain, how it is located, where it is located, and we have discussed about the different regions of brain. Human brain जो है वो it is divided mainly into three parts: forebrain, midbrain and hindbrain. The forebrain, which is known as prosencephalon, this forebrain consists of three very important structures. The very first structure that we talked about was the olfactory lobes. The olfactory lobes are the one where the olfactory nerve will emerge, and that is for receiving, or that is the sensation of the smell. So sensory nerves are located in this olfactory region, that is at the nasal epithelium, and they will be reaching till the olfactory nerve that is located at the brain, that is in the olfactory lobe region. Now, talking about the next region of the brain, that is forebrain, that was cerebral hemisphere. The cerebral hemispheres or the cerebrum. The cerebrum is divided into two cerebral hemispheres, right and left. We had discussed few points about it, that the outer region of the cerebrum is known as cerebral cortex. And this cerebral cortex is having several folds. It is having several folds, and these folds were known as gyri, and the depressions between them were known as the sulci. Cerebral cortex is having grey matter on outside because बाहर की तरफ सारे ही non myelinated nerve cells हैं और अंदर की तरफ white matter है, मतलब myelinated neurons हैं. So further talking about that, this sulci is going to divide the brain into two cerebral hemispheres and each cerebral hemisphere into different lobes. So let us discuss about that. So we are going to discuss about the region that is सेरिब्रम. हमने फोरब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स डिस्कस किया, पर उसके अलावा सेरिब्रम भी होता है और डायनसेफेलॉन भी होता है, तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज लेक्चर. सेरिब्रम, देयर इज अ सेंट्रल सल्कस, दैट इज अ लॉन्जिट्यूडनल फिशर. अ फिशर मतलब एक तरह का गैप, राइट, एक तरह का एक डिप्रेशन, एक ऐसा डिप्रेशन जो हमारे ब्रेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जिससे हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स. सो लॉन्जिट्यूडिनल फिशर डिवाइड्स द ब्रेन into two cerebral hemispheres. हमने देखा है कि ह्यूमन ब्रेन में जब आप डायग्राम देखते हो तो यू कैन सी दैट देयर आर टू पार्ट्स, राइट. तो वो दो जो पार्ट्स है वो कैसे हैं, तो हमारा जो ब्रेन है उसमें बीच में एक फिशर मतलब एक पूरा सा एक डिप्रेशन है, एक डीप डिप्रेशन है जो हमारे ब्रेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, और ये दो जो पार्ट्स बने वो हो गए सेरिब्रल हेमिस्फीयर. सो वी आर हैविंग अ राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर. अब हर एक जो हेमिस्फीयर है उसमें होते हैं चार लोब्स. जैसे कि हम लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, तो एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में कितने लोब्स हैं, चार लोब्स हैं. तो वो कौन से चार लोब्स होते हैं, हाउ दे आर डिवाइडेड, उसकी बात करते हैं. तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का यहाँ पे हमने एक तरफ का मतलब लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर मान लीजिए हमने ड्रॉ किया है, ठीक है. तो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में सबसे पहले देयर इज अ डिप्रेशन विच इज नोन एज सेंट्रल सल्कस. व्हाट इट इज कॉल्ड, सेंट्रल सल्कस. अब ये एक ऐसा डिप्रेशन है सेंट्रल सल्कस जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, and these two parts are frontal lobe and parietal lobe. तो फ्रंटल और पैराइटल को सेपरेट करने वाला एक डिप्रेशन है जिसे कहते हैं सेंट्रल सल्कस. सो सेंट्रल सल्कस separates frontal lobe and
पैराइटल लोब। तो फ्रंटल लोब, ये जो पोर्शन है इसे फ्रंटल लोब कहा जाता है। तो फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब को सेपरेट करने वाला जो डिप्रेशन है वो है सेंट्रल सल्कस। Similarly, there is one more sulcus known as lateral sulcus, and lateral sulcus is going to separate frontal from temporal. Frontal from temporal. So this region is called temporal. So lateral sulcus separates frontal lobe and temporal lobe. टेम्पोरल जो होता है वो हमारे ईयर्स के ऊपर लोकेटेड होता है, सो दैट इज द टेम्पोरल लोब. एंड लास्टली देयर इज अ पैराइटो occipital sulcus that separates parietal lobe from occipital lobe. So यहां पे हम मेंशन कर देते हैं इसे, दिस इज पैराइटो occipital sulcus and this sulcus is between parietal and occipital. Okay, so in this way there are three main depressions which are called sulci, और प्लूरल मतलब बहुत सारे इसीलिए सल्कस वर्ड यूज किया है. तो सल्कस जो है वो सेंट्रल सल्कस सेपरेट करता है फ्रंटल और पैराइटल को, लेटरल सल्कस सेपरेट करता है फ्रंटल और टेम्पोरल को, एंड पैराइटो ऑसिपिटल विल बी सेपरेटिंग पैराइटल फ्रॉम ऑसिपिटल. सो इन दिस वे लॉन्जिट्यूडनल फिशर से ब्रेन दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और फिर हर एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में भी कितने लोब्स हैं? 4 लोब्स हैं. ये 4 लोब्स के नाम तो आपको पता चल ही गए होंगे. दे आर द फ्रंटल लोब, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल आर द 4 मेन लोब्स ऑफ द ब्रेन. अब हर एक जो लोब है उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन रहता है. जैसे कि फ्रंटल है तो व्हाट एक्टिविटीज आर बीइंग गवर्न्ड बाय द फ्रंटल लोब, व्हाट एक्टिविटीज आर बीइंग गवर्न्ड बाय पैराइटल लोब, ये समझना बहुत जरूरी है. पर उसके पहले एक और बात कर लेते हैं कि हर एक जो लोब है उसमें 3 एरियाज होते हैं. ईच लोब कंसिस्ट ऑफ 3 एरियाज. हर एक लोब में कितने एरिया होते हैं? 3. ये 3 कौन से एरिया होते हैं? सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया एंड मोटर एरिया. राइट. हर एक जो लोब है, जैसे कि फ्रंटल लोब है तो फ्रंटल लोब में 3 एरिया है, सेंसरी फ्रंटल एरिया, मोटर फ्रंटल एरिया एंड एसोसिएशन. अब इसका रोल क्या होता है? तो सेंसरी एरिया जो है दैट इज गोइंग टू रिसीव द इंपल्स. राइट. कहां से? तो जो सेंस ऑर्गन्स है वहां से जो नर्व्स इमर्ज हो रही है, दे आर गोइंग टू कम इन विच पार्ट? सेंसरी एरिया. जैसे कि हमारी कोई भी एक्टिविटी है, मसल्स है, कोई भी एक्टिविटी है, स्किन की स्किन है, तो वहां से जो सेंसरी नर्व्स इमर्ज हो रही है, ये सेंसरी नर्व्स कहां पे जाएगी? तो सेंसरी एरिया में जाएगी. ठीक है. राइट. सो देयर विल बी सेंसरी इंपल्स को रिसीव करने वाला एरिया सेंसरी एरिया. एसोसिएशन एरिया जो है वहां पे इंपल्स क्या होता है? द मैसेज इज गेटिंग इंटीग्रेटेड. मैसेज को क्या इंटीग्रेट मतलब क्या समझना है, क्या इंटरप्रेट करना है, ये इंटरप्रिटेशन का काम एसोसिएशन एरिया का होता है. और इंटरप्रेट करने के बाद रिस्पॉन्ड करने का काम किसका होता है? मोटर एरिया का. तो हर एक के फंक्शंस तो अलग अलग है. जैसे कि स्किन है तो स्किन पे अगर आपको कोई तरह का पेन हो रहा है तो यहाँ पे जो सेंसरी नर्व सेल्स हैं दे विल गो टू विच एरिया? पैराइटल, बिकॉज पैराइटल इज द एरिया विच रिकॉग्नाइजेस द पेन एंड प्रेशर. तो हमें कोई भी पेन है या प्रेशर फील हो रहा है उसे रिकॉग्नाइज करना वो काम किसका है? सेंसरी नर्व का. कहां पे लोकेटेड है? स्किन से स्टार्ट
हो रहा है, पर जा कहाँ रहा है, इट इज गोइंग टिल द पैराइटल लोब ऑफ योर ब्रेन। सिमिलरली अगर हियरिंग है, राइट, कुछ सुन रहे हो और उसे रिकॉग्नाइज करना है तो इट गोज टू योर टेम्पोरल। कुछ विजन है, कुछ देख रहे हो और उसे रिकॉग्नाइज करना है तो दैट इज इन द ऑसिपिटल। वैसे हर एक लोब का फंक्शन है, पर हर एक लोब में भी 3 पार्ट्स हैं, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया और मोटर एरिया। सेंसरी नर्व्स जाती कहाँ पे है, सेंसरी एरिया में, इंटीग्रेट कहाँ पे होती है, एसोसिएशन एरिया में, और रिस्पॉन्ड कहाँ से करती है, मोटर एरिया से, राइट। सो दैट आर द 3 एरियाज। नाउ टॉकिंग अबाउट ईच लोब, तो फ्रंटल जो है, इसमें फ्रंटल लोब जो है, यहाँ पे जो एरिया है फ्रंटल लोब का, दिस एरिया ऑफ फ्रंटल लोब इज नोन एज प्री सेंट्रल मोटर एरिया। इट इज कॉल्ड प्री सेंट्रल मोटर एरिया। तो फ्रंटल की हम बात कर रहे हैं पहले, जिसमें हम बात कर रहे हैं प्री सेंट्रल मोटर एरिया की, एंड इट रेगुलेट्स और इट रिसीव्स द इंपल्सेस फॉर द वॉलेंटरी मसल एक्टिविटी। What does it receive the impulse from? Voluntary muscular activity के जो सारे impulses हैं, हमारे skeletal muscles के जो सारे activities हैं, they all will be recognized, right? That impulses will be recognized in which area? Frontal. और frontal में भी उस area को क्या कहा जाता है, वो central sulcus के आगे है, इसीलिए कहा जाता है प्री सेंट्रल, ठीक है। और मोटर एरिया है, सो प्री सेंट्रल मोटर एरिया is for all your muscular activities, voluntary muscular activities. Moreover, it is responsible, frontal area जो है वो किसके लिए है, creativity, right? creativity अगर होती है, curiosity होती है, तो ये जो creativity है that is also the role of frontal. इसके अलावा memory, कुछ याद रखना है, right? You remember many things. So based on past experiences, you know many things, you remember many things. So creativity, memory, learning, reasoning, ये सारी activities frontal lobe की होती है. So I am mentioning the words over here, learning as well as creativity, memory, learning. ये activities हैं जो कौन recognize करता है, frontal area. Okay. Next. The next area is the parietal. अब parietal जो है, parietal lobe, उसमें आप देख सकते हो that after the central sulcus there is the area, और इसे कहा जाता है post central sensory area. Post central sensory area, and this is responsible for recognize pain, pressure, touch and temperature. टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो या तो कोई तरह का पेन हो या प्रेशर या ऐसा कुछ फील हो रहा है, दैट ऑल थिंग्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय विच लोब, parietal lobe, right? So parietal lobe is responsible for recognizing any such changes, that is pain, pressure, touch and temperature. Moreover, there is also a presence of taste area. जो जो टेम्पोरल लोब है उसी के ऊपर लोकेटेड है, मतलब हम कह सकते हैं कि लेटरल सल्कस जो है उसके ऊपर एक टेस्ट एरिया लोकेटेड है जो एक्चुअली पार्ट पैराइटल लोब का है. इट इज अ पार्ट ऑफ पैराइटल लोब. तो यहाँ पे टेस्ट एरिया भी होता है which will be receiving the impulses from the tongue. So receive impulse from the tongue. तो वो टेस्ट एरिया भी पैराइटल लोब का पार्ट है, ठीक है. फिर बात करते हैं टेम्पोरल लोब की. तो टेम्पोरल लोब जो है, इट हैज वन मेन रीजन विच इज द ऑडिटरी रीजन. Auditory region, and this is the auditory region.
ऑडिटरी एरिया इज फॉर रिकॉग्नाइजिंग द साउंड्स दैट यू हियर, राइट? आप जो सुनते हो वो सारी चीजें रिकॉग्नाइज जो है वो यहाँ पे ऑडिटरी रीजन में होती है, विच इज द पार्ट ऑफ द temporal lobe. Moreover, temporal lobe is also having the olfactory region, auditory as well as olfactory region, and it will receive the impulse from olfactory nerve, that is for them फॉर द स्मेल. तो स्मेल को रिकॉग्नाइज करना, राइट? कौन सी अलग तरह की स्मेल है, अलग अलग खाने की जो खुशबू होती है वो सब रिकॉग्नाइज जो है वो हमारे टेम्पोरल लोब में होता है. सो टेम्पोरल लोब हैज टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, ऑडिटरी भी है एज वेल एज इट हैज olfactory region. Along with auditory and olfactory region, the temporal lobe has a special vernix area. Vernix area, and this vernix area is for understanding the speech, right? आप जो सामने वाले जो बोल रहे हैं, right? स्पीच को समझना, उसे इंटरप्रेट करना, that what the another person is trying to speak. ये इंटरप्रिटेशन का काम जो है वो वर्निक्स एरिया का होता है. और वर्निक्स एरिया जो है इट इज located in the left temporal lobe. It is located in the left temporal lobe, और left temporal lobe में वर्निक्स एरिया स्पीच को अंडरस्टैंड करने का, इंटरप्रेट करने का काम करता है, राइट? कोडिंग जिसे हम बोलते हैं, सामने वाला क्या बोल रहा है उसे डिकोड करना, दैट कैन बी डन बाय द वर्निक्स एरिया, दैट इज फॉर द टेम्पोरल लोब. लास्टली वी हैव ऑसिपिटल लोब. Occipital lobe, and that is mainly for the sight, or you can say vision. आप जो देख रहे हो तो विजुअल एरिया जो है, this visual area is a part of the occipital lobe. तो जो फ्रंटल है उसका फंक्शन है क्रिएटिविटी, मेमोरी, लर्निंग, रीजनिंग, वॉलेंटरी, मस्कुलर एक्टिविटीज, वो सब फ्रंटल में रेगुलेट होता है. मोर ओवर फ्रंटल में एक और रीजन होता है, दैट इज motor area, which is Broca's motor area. Broca's motor area, and that is also associated with the speech. वो speech के साथ associated है. तो frontal lobe जो है उसमें muscular activity के साथ साथ memory, learning, reasoning, creativity आ जाता है. Parietal में recognizing touch, temperature, pain, pressure. Moreover, it has the presence of taste area also. Occipital is for your visual reflexes. आप जो देखते हो उसे समझना on the basis of your past experience, that is done by occipital. And for temporal, there is auditory function, there is olfactory function, right? And along with this, understanding the speech and writing are also characteristics associated with the temporal lobe. So in this way, different parts of cerebral hemispheres are having different functions. And next we are left with one more topic over here in the forebrain, and that is diencephalon. So we were discussing about the regions of the forebrain, in which we have first discussed about the olfactory lobe. Secondly, we have discussed about the cerebrum, that is the two cerebral hemispheres and its function. The third part of the forebrain, that is the diencephalon. Now, diencephalon is a structure that consists of epithalamus, thalamus and hypothalamus. डाइनसेफेलॉन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें तीन पार्ट्स आ जाते हैं. एपिथैलेमस जो रूफ होता है डाइनसेफेलॉन का, थैलेमस जो साइड्स होते हैं डाइनसेफेलॉन के, और फ्लोर को कहा जाता है हाइपोथैलेमस. अब इसमें से जो एपिथैलेमस है, एपिथैलेमस, इट इज थिन
वैस्कुलर एंड नॉन नर्वस टिश्यू, मतलब वो नर्वस टिश्यू नहीं है. So there are no nerve cells present in the epithalamus region. So epithalamus is a non-neural, just highly vascular tissue that is present in the region of the brain. Epithalamus में कोई nerve cells नहीं है, पर epithalamus जो है it forms the roof of the diencephalon. Diencephalon के structure में epithalamus के end पे there is presence just behind the epithalamus, or you can say at the end of the epithalamus. At the end of epithalamus, there is a vascular tissue which is known as anterior choroid plexus. इसे कहा जाता है एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस. यहां पे जो आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, दिस इज द एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस. ये पूरा जो स्ट्रक्चर है राइट, वो एपिथैलेमस है. और एपिथैलेमस के एंड पे आप देख सकते हो एक वैस्कुलर स्ट्रक्चर है. और ये वैस्कुलर मतलब बहुत सी ब्लड वेसल्स होती है यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस इज अ साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. मतलब ब्लड में से जो CSF सेपरेट होता है, ये सेपरेशन का काम यहाँ पे एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस में होता है. एंड जस्ट बिहाइंड द एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस यू कैन ऑब्जर्व अ स्मॉल लोब. आप छोटा सा राउंड स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, दिस इज नोन एज द पीनियल बॉडी. इट इज नोन एज द pineal body, right? So behind the anterior choroid plexus there is a pineal body. Pineal body actually endocrine है function में, and it secretes a hormone जिसे कहते हैं melatonin. It secretes a hormone called melatonin. Pineal body जो है वो endocrine tissue है, right? तो endocrine system जो है वो hormones रिलीज करता है. तो यहाँ पे पहले ही endocrine gland आ जाता है और वो है pineal body जो hormone रिलीज करता है melatonin. ये hormone हमारी sleep wake cycle को regulate करता है. That is during daytime, right? The amount of melatonin reduces, due to which you are able to wake up. And then after at the night time again the melatonin increases. तो आपकी जो rhythmicity है वो maintain करने का काम melatonin hormone का होता है. Along with it there are several other functions also. Another thing is that the next region which is the thalamus, it is mainly composed of gray matter. Thalamus जो पूरा structure है उसमें क्या होता है, सिर्फ नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल्स है, इसीलिए वो पूरा ही ग्रे मैटर से फिल्ड स्ट्रक्चर है. एंड आफ्टर द थैलेमस द फ्लोर ऑफ डायंसिफिलॉन इज द हाइपोथैलेमस. इट इज द हाइपोथैलेमस एंड दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ द हाइपोथैलेमस. तो ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये सबसे नीचे जो स्ट्रक्चर है दैट इज द हाइपोथैलेमस. द हाइपोथैलेमस विल बी कनेक्टेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड बाय अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर known as infundibulum, which is known as infundibulum. तो ये हो गया हाइपोथैलेमस और ये हो गया हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड. और इनके बीच में जो आप स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन टू बी द infundibulum, जो कनेक्ट कर रहा है नर्वस सिस्टम को टू द एंडोक्राइन सिस्टम. राइट, नर्वस सिस्टम है यहाँ पे और ये एंडोक्राइन सिस्टम को पहला कनेक्शन जहां से मिल रहा है वो है infundibulum. थैलेमस जो होता है इट इज द पार्ट विच इज लोकेटेड जस्ट अबाउट द मिड ब्रेन. तो अब यहाँ पे मिड ब्रेन का रीजन आ जाता है
और उसके ऊपर जो ग्रे मैटर नर्व सेल्स है उसे थैलेमस कहा जाता है. सो देयर विल बी डायंसेफेलॉन कंसिस्टिंग ऑफ एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस के फंक्शंस की बात करें तो इट इज नियरली 4 grams in its weight. Hypothalamus is responsible for maintaining all visceral activities. Visceral activity मतलब involuntary activities जो हमारी बॉडी में होती है वो सारी ही रेगुलेट कहाँ पे होती है? हाइपोथैलेमस. नेक्स्ट, it maintains homeostasis of the body. होम्योस्टेसिस मतलब एक बैलेंस, बॉडी का जो बैलेंस बना के रखता है. होम्योस्टेसिस का यहाँ पे मतलब है थर्मो रेगुलेशन. टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है उसे मेंटेन करने का काम जो है दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस. देयर आर सेंटर्स फॉर योर बिहेवियर, right, your sexual activity. These centers are also located. आपका behavior कैसा है, right? Your sexual activities are also regulated by the hypothalamus. Along with temperature regulation, regulating visceral activities, there is presence of thirst centers, hunger centers, or you can say appetite centers, right? ये भी लोकेटेड है. एंड सैटिएटी सेंटर. सैटिएटी सेंटर मतलब अ सेंटर ऑफ सेटिस्फैक्शन, अ सेंटर ऑफ रिलीफ, कि आपको रिलीव्ड है, राइट? तो ये जो रिलीफ है, ये जो सेटिस्फैक्शन है, वो फीलिंग भी हाइपोथैलेमस से ही रेगुलेट होती है. तो हाइपोथैलेमस हैज सो मेनी रोल्स. इट मेंटेन्स अ कनेक्शन बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम. इन दोनों के बीच का कनेक्शन भी क्या है? हाइपोथैलेमस है. सो हियर दिस रीजन विल बी द एपिथैलेमस, दिस सेंट्रल पार्ट इज द थैलेमस, द फ्लोर इज द hypothalamus. Then we will talk about the regions of the midbrain, okay, and then after the hindbrain.